11 practical copy. This I will share with you because first time you are going to write. Now in this experiment number 1, aim, first question was your area and perimeter of a square, or you can write here print hello because print hello is your first program. So write a program in Python or Python program to print any message. Clear? Now answer first will be your logic of the program. So what logic is here? Nothing, only using print command. So using print command, print function, it is a built-in function. Now program you will write, this is the writing procedure in your practical copy. So program, what program you will write here? First you can write a comment here. Comment will be to print any message. So this comment you have written here, and then you are using print command, in small letter, print command to print any message. Now the message can be hello. So this is one method. Now when you will execute it, output will be only hello. This will be your output. It is clear? So this is your first program. Yes, this is your first program. Now this same program you can use some other method to solve it. Now I am using a second method to solve this program. Now what will be my second method? I will use print and I will ask your name. So name I will ask NAME, name, from user. Now a string is always taken from user using input. So enter your name. Enter your name. And then you will display hello message with your name. So we will write here print hello message will be printed with your name. So hello and then comma your name. Now when you will execute it, I will show it what it will do. It will ask your name and then it will print with that name. So here it will ask, output will be, it will ask your name. So enter your name, and then when you will enter your name, suppose your name is Amrita, then what it will print? Hello Amrita. That is along with your name. Till now it was printing only hello. Now I have used a variable here. So I am asking the user to enter a name and I am taking this variable here. So it will print hello Amrita. Clear? Along with the message it is printing. So this is a second method to solve the same question. If you know any other method to print any message, you can write using or, you can write those methods also. Clear? So this was your experiment number 1. Now experiment number 2 is your area and perimeter. To print area and perimeter, so I am copying it from here. So in copy you will keep on writing continuously, don't leave that page. From there only, experiment number 2, to print
area and perimeter of a square. Now logic will be, what logic you are applying here. You will ask the user to enter the side and then we will give the formula here. So I am just writing here area equals to, or you can write here area equals to side into side and perimeter equals to, so whatever logic will be different, means everybody will have his own logic. Perimeter is equals to 4 into side. Then the program you will write here. You can paste the screenshot of your mobile, like in Pydroid. I will show you last year what the students have done, like the programming you are doing in your mobile. So it is already saved in your mobile. They have taken the screenshot of the program and they have pasted it. So that also you can do. I am pasting my program from here. You can take the screenshot of your Pydroid and program and you can paste it here. ठीक है, स्क्रीनशॉट आ जाएगा. तो यहाँ पे प्रोग्राम आ गया, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. अब आउटपुट को भी मैं यहाँ से पेस्ट कर दूंगी. यहाँ से मैं लेके, ये मेरा आउटपुट था तो इसको मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे पेस्ट कर दिया आउटपुट. ठीक है, ये आउटपुट है. अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 3 करेंगे. तो ये हमारा हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पूरा. इसको मैं अलग कलर दे रही हूँ. मैं इसको शेयर कर दूंगी तुम लोग के ग्रुप में ताकि तुम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो. तो दिस इज योर. मैम आउटपुट हम लोग को क्या व्हाइट पेज में लिखना है? व्हाइट पेज में लिखना है, हाँ. ठीक है, जो प्रैक्टिकल कॉपी यूज कर रहे हो एक साइड रूल्ड है, राइट साइड और लेफ्ट साइड व्हाइट पेज. जस्ट प्रोग्राम के सामने उसका आउटपुट लिखोगे, ये नहीं कि इधर उधर लिख दे रहे हो. जैसे तुमने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जहां से शुरू किया, ठीक उसके सामने व्हाइट पेज में उसका आउटपुट. ठीक है, मैं हम लोग प्रैक्टिकल कॉपी खरीदना है. मैं तो ये रूल वाला खरीद लिया हूँ बड़ा वाला. ये तो क्लास वर्क कॉपी है जो तुमने अभी. ठीक है, अभी क्लास वर्क कॉपी में ही लिख लो. अभी अगर प्रैक्टिकल कॉपी में नहीं लिखना है क्लास वर्क कॉपी में लिख लो. बट प्रैक्टिकल एग्जाम के समय तो तुमको प्रैक्टिकल कॉपी जमा करना पड़ेगा ना. एनुअल एग्जाम जो होगा स्कूल में आके तुमको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है इसी का. अगर ऑनलाइन भी होगा तो भी तुमको कोलैब में या पाइड्रॉइड जिसमें भी दोगे, प्रैक्टिकल कॉपी उसके लिए मस्ट है. तो कभी भी टाइम. हाँ बोलो मैम. जो आप प्रोग्राम और इनपुट बताए उसके रूल साइड में लिखना है. हाँ, प्रैक्टिकल कॉपी का जो राइट हैंड साइड में रूल्ड होता है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लेन होता है. तो मैं कॉपी एक दिखा, रुको मैं कॉपी दिखा देती हूँ. किसी स्टूडेंट का कॉपी दिखा देती हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा. प्रैक्टिकल कॉपी, ये तुम्हारा इंडेक्स पेज रहेगा. इंडेक्स पेज में जैसे आज के डेट में आज का डेट लिखोगे यहाँ पे. ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर इसको अभी जैसे लिख रहे हो उसको 1A1 भी कर देना. तो यहाँ पे 1 लिखोगे. एक्सपेरिमेंट यहाँ पे जस्ट पाइथन प्रोग्राम तुमने जो शुरू किया है या फिर जो प्रोग्राम कर रहे हो, जैसे पहला वाला प्रिंट मैसेज था, सेकेंड वाला एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर था. तो ये तुम्हारा इंडेक्स पेज साइन होगा. नेक्स्ट तुम्हारा रूल्ड पेज जो ये राइट हैंड साइड का रूल्ड पेज है, इसमें ऊपर एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एम, लॉजिक, प्रोग्राम, और जो व्हाइट पेज उसके सामने है उसमें आउटपुट लिखोगे. जस्ट उसके सामने व्हाइट पेज है उसमें आउटपुट. ठीक है, अगर प्रैक्टिकल एग्जाम तुम्हारा ऑफलाइन हुआ तो फिर तो स्कूल में ये जमा होगा. अगर ऑनलाइन हुआ तो तुमको इसी तरीके से अपने पूरे प्रैक्टिकल फाइल का पीडीएफ बना के तुमको भेजना है. ठीक है, रूल पेज में प्रोग्राम और ठीक उसके सामने व्हाइट पेज में उसका आउटपुट. तो ये तुम लोग आज से शुरू कर दोगे लिखना. ठीक है,
और इसमें तुमको जो क्लास वर्क कॉपी है दैट इज डिफरेंट, उसमें तो नोट्स बना ही रहे हो, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो, उसका अलग है। ये प्रैक्टिकल कॉपी फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम, जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसके लिए है ये प्रैक्टिकल कॉपी। ठीक है, तो इसको मैं शेयर कर दे रही हूँ। आज वाले जितने प्रोग्राम्स हैं, एरिया पेरीमीटर हो गया, और इसके बाद इसको एक काम करो 1A 1B कर दो। फर्स्ट वाला तुम्हारा 1A था, ये वाला तुम्हारा 1B था। इसका कलर चेंज कर देते हैं, और नहीं तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसका कौन सा है। ये फर्स्ट वाले का है। अब ये एक्सपेरिमेंट नंबर जो है इसको मैं अंडरलाइन और बोल्ड कर दे रही हूँ। ठीक है, इसको मैं तुम लोग के साथ शेयर भी कर दे रही हूँ, तो तुम लोग को इजी हो जाएगा। अब इसके बाद वाला जो है वो क्या था, टोटल एंड परसेंटेज। तो मैंने यहाँ से, यहाँ पे हमको टोटल एंड परसेंटेज 1C हो जाएगा। ये इसको हम 1C कर दे रहे हैं, प्रिंट टोटल एंड परसेंटेज। और यहाँ से मैं उसको, ये है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर ले रही हूँ। तुम लोग अपने पाइड्रॉइड का स्क्रीनशॉट उसमें डाल सकते हैं। अब ये जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है, टोटल एंड परसेंटेज, ये तुम्हारा थर्ड एक्सपेरिमेंट है। इसमें तुमने लॉजिक क्या लगाया है, लॉजिक इसमें लिखोगे कि टोटल इज द सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो इसमें लिख रहे हैं टोटल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट मार्क्स। और परसेंटेज इसमें मैंने 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 लिया है। हाँ, इसमें सब सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट मार्क्स आउट ऑफ 100, तो ये 100 का है। तो मैंने परसेंटेज में लिखा है कि परसेंटेज इक्वल्स टू टोटल अपॉन 5। ये जस्ट इंग्लिश में तुमको लिखना है, कोई भी लैंग्वेज कुछ भी इसमें लिख सकते हो, लॉजिक तुमको समझाना है बस। प्रोग्राम, ये तुम्हारा प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम में तुम यहाँ पे हैश करके कमेंट लिख सकते हो। कमेंट को मैं यहाँ से टू प्रिंट टोटल एंड परसेंटेज ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, इसको मैंने यहाँ डाल दिया है। फिर आउटपुट जो रहेगा इसका, वाइट पेज में जो आउटपुट लिखोगे वो भी मैं यहाँ से, तुम उसका भी आउटपुट का भी तुम लोग स्क्रीनशॉट, जो तुम्हारे मोबाइल का स्क्रीनशॉट आ रहा है उसको तुम पेस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रही हूँ। ये हो गया मेरा आउटपुट। तो ये थर्ड जो है, थर्ड का मैं दूसरा कलर कर देती हूँ ताकि जब मैं शेयर करूँगी तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको मैं ब्लू में डाल देती हूँ। ठीक है, तो ये थर्ड एक्सपेरिमेंट हो गया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट तुम्हारा प्रिंट एनी मैसेज है। तुम इसमें और करके अगर कोई तुम्हारे पास दूसरा मेथड है उसको भी लिख सकते हो। सेकेंड तुम्हारा एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, थर्ड तुम्हारा टोटल एंड परसेंटेज ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। इसके बाद जो मैंने और बाकी का तुम लोगों को दिया है, इसमें इसको एज अ होमवर्क करोगे। कौन सा, कन्वर्शन टू मीटर टू सेंटीमीटर, grade of student and net salary. This is your homework, and tomorrow you will share your copy with previous, हमारा 1 2 3 मैंने शेयर किया है और 4 5 6 तुमको करना है। तो total 6 practicals you write in practical copy, or if you are not having now practical copy you can write today in your classwork copy and share it. Then whenever you will buy it, जितनी जल्दी खरीद लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि डबल वर्क करना पड़ रहा है, और नहीं तो तुमको हर क्वेश्चन को लिखना, प्रैक्टिकल कॉपी में तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है।